Hello everyone, welcome. So this is phase equilibria part 4. 3 videos regarding this topic have already been uploaded on the channel where we have discussed some basic concepts and water system as well, which is very important topic in this chapter. So you can go and check there on the channel. I'll provide the link of playlist in the description also. So now in this video we will discuss sulfur system, which is really very important. So let's begin. So this is sulfur system which we are going to start, and sulfur system is one component 4 phase system. sulfur system जो है वो one component 4 phase system होता है. कैसे? सल्फर सिस्टम में 4 फेजेस प्रेजेंट होते हैं. पहला है रोम्बिक सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, तीसरा लिक्विड सल्फर और चौथा है वेपर सल्फर. ये 4 फेजेस होते हैं जो कि सल्फर के होते हैं. लेकिन इन चारों ही फेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर हैविंग ओनली वन केमिकल इंडिविजुअल, दैट इज सल्फर इटसेल्फ. वो सल्फर ही है. हम चारों ही फेजेस को सल्फर से ही रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज वाई सल्फर सिस्टम इज अ 4 फेज, बिकॉज 4 फेजेस आर देयर. वन component सिस्टम बिकॉज ओनली वन component इज देयर, दैट इज सल्फर. So let's see the sulfur system, the phase diagram of sulfur system, and that is we can see in this is the phase diagram of sulfur system, okay, which is drawn between pressure in atmospheric and temperature in degree Celsius. इसमें हम देख सकते हैं 4 पॉइंट्स हैं, A, B, C और D. यही चारों पॉइंट्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा देयर इज़ अ पॉइंट E, F, G. दे ऑल आर वेरी स्पेसिफिक, दे ऑल हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट in this particular video. So now I'm going to discuss some basic things in this particular phase diagram, and that is this is the rhombic sulfur. This area represents the rhombic sulfur. So rhombic sulfur is solid rhombic sulfur, okay. So this is one phase. Second phase is liquid sulfur. Third phase is solid monoclinic sulfur, okay. And the fourth phase is vapor sulfur. So these are the 4 phases of the sulfur, and this is one component. Why? Because only one chemical individual is there which is used to represent all 4 phases, and that is sulfur itself. So that is why this is 4 phase, one component system. We will discuss everything about all these in this particular video. So let's begin. So if we talk about the salient features of phase diagram of sulfur, so 6 curves are there, AB, BC, CD, BC and EG. We can see there are 6 curves. I'll show you. 6 curves are there. AB, this is the curve AB, then BC, CD, and then BE and C. These are the curves, okay. And now the 3 triple points B, C, E. We have already discussed about the triple points. There was one triple point in the water system as well. So इस वाले सल्फर सिस्टम में 3 ट्रिपल पॉइंट्स होते हैं. सल्फर सिस्टम में 3 ट्रिपल पॉइंट्स होते हैं. हम देख सकते हैं यहाँ पे B, C और E. ये 3 ट्रिपल पॉइंट्स हैं जो कि सल्फर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. और इसके अलावा सल्फर सिस्टम में प्रेजेंट होता है 4 एरिया, ओके. 4 एरियाज प्रेजेंट होते हैं. एक हमारा है ABEG, हम पहले ही देख चुके हैं, जो कि रोम्बिक सल्फर को रिप्रेजेंट करता है. सी विल सी दिस ऑल. सी 4 एरियाज होते हैं. एक होता है हमारा सो 4 एरियाज आर देयर इन द रोम्बिक सल्फर. एक होता है हमारा ABEG. तो ABEG में हम देख सकते हैं ABEG. ये जो एरिया है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड रोम्बिक सल्फर को. दिस इज ऑल्सो वन फेज. सो हमारा ये जो एरिया है ABEG, ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड रोम्बिक सल्फर को. इसके अलावा जो हमारा एरिया है ABCD, ओके, ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है वेपर सल्फर को. इसके अलावा ये जो एरिया है DCAG एरिया रिप्रेजेंट करता है लिक्विड सल्फर को. और हमारा जो ये वाला एरिया है विच इज़ लेफ्ट हेयर, विच इज़ BCE,
ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर को. सो दिस इज ऑल अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम, जिसमें कि 6 कर्व्स होते हैं, 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं और 4 एरियाज होते हैं. ये हमने अपने फेज डायग्राम में देख लिया. सल्फर सिस्टम के फेज डायग्राम में कहाँ कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है एंड हाउ मेनी 3 ट्रिपल पॉइंट्स आर देयर. ओके, now if we talk, then we will just discuss every curve, every triple point, every area which is included in the sulfur system. So now let's begin with the curve AB. So let's see where is curve AB. So see, this is curve AB. We will start from curve AB now, and we will discuss everything about the curve AB, what it represents. So curve AB is a vapor pressure curve of rhombic sulfur. ये जो कर्व होता है वेपर प्रेशर कर्व होता है रोम्बिक सल्फर का, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होता है. इस कर्व पे 2 फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं. एक होता है रोम्बिक सल्फर और एक होता है वेपर सल्फर. और सबसे बड़ी बात की है कि इस सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम फाइंड आउट करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 आता है. कैसे? जैसा कि हम देख सकते हैं कर्व AB पे 2 फेजेस होते हैं. तो 2 फेजेस होते हैं तो फेज 2 हो जाएगा. कंपोनेंट तो यहाँ पे यूनिवर्सल है, 1 ही होगा, दैट इज सल्फर. और जब हम फेज रूल में इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वी विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 1. सो दैट इज़ वाई दिस कर्व, दिस सिस्टम इज मोनोवेरिएंट, बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम वी आर गेटिंग इज 1. सी, हम देख सकते हैं फेज डायग्राम में जो कर्व AB है ये रिप्रेजेंट करता है 2 फेजेस को जो कि आपस में इक्विलिब्रियम में हैं. एक है रोम्बिक सल्फर और एक है वेपर सल्फर. ये दोनों ही रोम्बिक, सॉलिड रोम्बिक सल्फर और एक वेपर सल्फर, ये दोनों ही आपस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे 2 फेज हुआ, 1 कंपोनेंट है, एंड वी विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 1. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कर्व BC. अब सी कर्व BC क्या रिप्रेजेंट करता है, वी विल सी इन द डायग्राम. तो ये है हमारा कर्व BC जो रिप्रेजेंट करता है 2 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं. इस पर्टिकुलर कर्व पे, कर्व BC पे 2 फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं. एक होता है हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर, सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर, और दूसरा होता है वेपर सल्फर. ये दोनों ही फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर कर्व दैट इज BC. ठीक है, ये दोनों ही फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे भी नंबर ऑफ फेज 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1, एंड वी विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 1. सो सिस्टम इज मोनोवेरिएंट. ठीक है, तो इस कर्व में आगे बढ़ते हैं हम. अब हम डिस्कस करेंगे कर्व CD को. ठीक है, तो कर्व CD को हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं. जो कर्व CD है इट रिप्रेजेंट्स 2 phases are in equilibrium which is liquid sulfur and vapor sulfur. liquid sulfur और vapor sulfur दोनों ही आपस में equilibrium में होते हैं at this particular curve CD. और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो 2 फेजेस हैं और एक कंपोनेंट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 ही होगा, राइट. So let's read this because this is just kind of notes and you can just write down all these. So curve CD, this curve showed equilibrium with liquid and vapor sulfur. This system has 1 degree of freedom. Monovariant होता है, कैसे आया ये we have already discussed. Now we will discuss कर्व BE. अब कर्व BE क्या रिप्रेजेंट करता है हम ये डिस्कस करने वाले. तो हम पहले डायग्राम में देख लेते हैं कर्व BE. सो हम देख सकते हैं दिस इज कर्व BE. ये है कर्व BE जो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर भी 2 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं. एक होता है सॉलिड रोम्बिक सल्फर और दूसरा है सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर, और ये दोनों ही आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं. दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है तो फिर यहाँ पे भी नंबर ऑफ फेज 2 होगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होगा, and we will get the degree of freedom also 1. The system is monovariant. So let's read out these about curve BE. तो जो कर्व B है ये शो करता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. ओके, along this curve the 2 solid phases rhombic and monoclinic sulfur are in equilibrium, and that is why the degree of freedom is 1. So this is all about degree of freedom. We will get the number of phases 2, number of component 1. After putting all these values on phase rule we will get the degree of freedom 1.
Okay, so this is all about the curve B. I hope it's clear to you all. Now we will discuss curve CE. तो पहले हम कर्व CE को फेज डायग्राम में देख लेते हैं. तो हमारा ये है कर्व CE जो ये रिप्रेजेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो फेजेस ही आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं. पहला है सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर और दूसरा है लिक्विड सल्फर. ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं. इज इट? तो सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर ये आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं. डेफिनेटली यहाँ पर भी दो फेजेस हैं जो आपस में इक्विलिब्रियम में है. तो नंबर ऑफ फेजेस 2. इस पर्टिकुलर सिस्टम कर्व की बात कर रहे हैं हम. तो नंबर ऑफ फेजेस 2, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 and the degree of freedom is also 1 here. The system is monovariant. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी कर्व्स हैं, all the curves they are having degree of freedom 1 because on all the curves the two phases are in equilibrium. तो कर्व C के बारे में we'll read out all these. So this is kind of notes, you should note down all these. It is the fusion curve of monoclinic sulfur. Yes, ये जो कर्व C होता है ये मोनोक्लिनिक सल्फर का फ्यूजन कर्व होता है. ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम बिटवीन मोनोक्लिनिक एंड लिक्विड सल्फर. और यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर. मोनोक्लिनिक सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पे ये भी हमें समझ आ जाता है. इस सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है. कैसे है यू ऑल नो, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. लेट्स डिस्कस इट अगेन. सो फेज, नंबर ऑफ फेज तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 हो जाएगा. फेज रूल हम देख सकते हैं, फेज रूल में अप्लाई करेंगे. आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज ऑन द फेज रूल वी विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड इट शोज द सिस्टम इज यूनिवेरिएंट. नाउ विल डिस्कस द कर्व EG. तो पहले हम कर्व EG को देख लेते हैं. कर्व EG, दिस इज कर्व EG. ओके, दिस इज कर्व EG विच इज वेरी शॉर्ट. Now, the two phases rhombic and liquid sulfur, they coexist in equilibrium. Rhombic and liquid sulfur. See, rhombic sulfur and liquid sulfur, they both exist in equilibrium at this particular curve that is EG. तो यहाँ पे भी दो फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ फेज 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड वी विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 1 आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज ऑन द phase rule. So the two phases rhombic and liquid sulfur coexist in equilibrium along this curve and this system is univariant after finding out the degree of freedom which is 1 at this particular curve which is easy. Now we will discuss about the triple points. We have already discussed that there are 3 triple points in this particular sulfur system and I'll show you. This is triple point B. This is triple point B where we can see 1, 2 and 3 curves are in equilibrium. Okay, now at this point 3 curves AB, BC and B meets. यहाँ पे AB, BC और B तीनों मिल रहे हैं, ये हम देख सकते हैं. 3 phases rhombic, monoclinic and vapor sulfur, ये भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है. पहले हम यहाँ पे see in this phase diagram of sulfur system we will see ये हमारा है ट्रिपल पॉइंट B जहाँ पे हमारे 1, 2 और 3 कर्व्स आपस में मिल रहे हैं. ये 3 कर्व्स और इस पॉइंट पे ये तीनों ही कर्व्स इक्विलिब्रियम में हैं. साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड रोम्बिक सल्फर, सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर और साथ में वेपर सल्फर, ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट which is B and which is the triple point. Okay, we are having 3 triple points in this sulfur system. So triple point B पर हम देख सकते हैं कि 3 phases हैं जो कि equilibrium में हैं. अब now we have to find the degree of freedom at the triple point B. ठीक है, तो जब number of phase 3 हैं तो कंपोनेंट तो 1 ही रहना है, और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें फाइंड आउट करना है तो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज ऑन द फेज रूल वी विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम 0. इसका मतलब जो ट्रिपल पॉइंट बी है वो नॉन वेरिएंट है, वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द अनदर ट्रिपल पॉइंट विच इज़ ट्रिपल पॉइंट सी. अब हम देख सकते हैं ट्रिपल पॉइंट सी को पहले देख लेते हैं. ये है हमारा ट्रिपल पॉइंट सी. ठीक है, यहाँ पे 3 कर्व्स मिल रहे हैं, कर्व EC,
कर्व BC और कर्व CD, ये तीनों ही आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग हेयर। जब यहाँ पे ये मिल रहे हैं इसका मतलब है कि कर्व BC, कर्व CD और कर्व C ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में है एट दिस पर्टिकुलर ट्रिपल पॉइंट C। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि तीन फेजेस, सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर, ये तीनों ही आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल पॉइंट C पर वेपर सल्फर, सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर ये इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी नंबर ऑफ फेजेस 3 होंगे, कंपोनेंट 1 होगा, और जब फेज रूल पे अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। सो द सिस्टम इज नॉन वेरिएंट। अब हम देख सकते हैं जो हमारे जो कर्व्स थे, वी आर हैविंग, हम जब कर्व्स के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा था, सिस्टम वॉज यूनिवेरिएंट। लेकिन ट्रिपल पॉइंट्स पे सिस्टम क्या है कि 3 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम जो है वो नॉन वेरिएंट है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड, वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट ट्रिपल पॉइंट एंड दैट इज ट्रिपल पॉइंट E। पहले ट्रिपल पॉइंट E को देख लेते हैं हम। यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट E ये है, ठीक है। यहाँ पे 3 कर्व्स आके मीट कर रही हैं, कर्व B, कर्व C और कर्व EG। ये तीनों ही कर्व्स यहाँ पे मिल रही हैं ट्रिपल पॉइंट E पर। तो ट्रिपल पॉइंट E पर हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही कर्व्स इक्विलिब्रियम पे हैं, और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों हमारे फेजेस हैं ये भी इक्विलिब्रियम पे हैं। कौन कौन से? यहाँ पे होगा सॉलिड रोम्बिक सल्फर, सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर, ये तीनों ही आपस में इक्विलिब्रियम पे होंगे। कहाँ? एट द पॉइंट E विच इज़ अ ट्रिपल पॉइंट। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस तीन फेजेस इक्विलिब्रियम में है तो नंबर ऑफ फेजेस 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट तो 1 है ही, और हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा दैट विल बी 0। ओके, तो the 3 curves C, B and EG meets here and the 2 lines have different inclinations above the pressure axis. The system is non-variant. Yes, system जो है वो non-variant है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करेंगे तो we will get 0. Okay, now we will discuss the metastable equilibria. तो जो ये डॉटेड कर्व्स है ना, ये हमारे फेज डायग्राम में जो डॉटेड कर्व्स हैं कौन कौन से हैं, ये देखो, ये डॉटेड है, ये डॉटेड है, दीज आर द डॉटेड थिंग्स। तो इन्हें हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, और यही होते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया। ओके, सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक सल्फर इज अ स्लो प्रोसेस। यस, ये हम सभी जानते हैं कि अगर रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक सल्फर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो इसलिए यहाँ पे ना हम कह सकते हैं कि 3 फेजेस ही एग्जिस्ट करते हैं, रोम्बिक, लिक्विड और वेपर सल्फर। तो अंडर दिस वी विल डिस्कस 3 कर्व्स एंड 1 ट्रिपल पॉइंट। तो अगर हम ये कंसीडर करें कि 3 ही फेज मतलब एक्सिस्टेंस होता है 3 ही फेज का, रोम्बिक, लिक्विड और वेपर, क्योंकि रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो यहाँ पे वी आर कंसीडरिंग ओनली 3 फेजेस एंड 1 ट्रिपल पॉइंट। तो जो डॉटेड कर्व्स हैं BF, CF, EF, सी दिस इज द डॉटेड कर्व BF, CF एंड दिस इज EF। ये जो तीनों कर्व्स हैं ये हमारा मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया है, और ये तीनों जहाँ पे मिल रहा है वो है F। तो F भी क्या हम कह सकते हैं ट्रिपल पॉइंट, और हम हमें इन्हीं को डिस्कस करना है। ओके, तो ट्रिपल पॉइंट और ये ट्रिपल पॉइंट, इसके अलावा ये 3 डॉटेड कर्व्स, ये जो मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद डॉटेड कर्व BF। तो डॉटेड कर्व BF के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ वेपर प्रेशर कर्व ऑफ मेटास्टेबल रोम्बिक सल्फर। हाँ, रोम्बिक सल्फर का वेपर प्रेशर कर्व है, हम अभी देखेंगे डायग्राम में, और डायग्राम में ही देख लेते हैं। सी, हम बात कर रहे हैं कर्व BF की, जो कि एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया है। ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोम्बिक सल्फर की बात कर रहा है यहाँ पे ना, रोम्बिक सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके साथ ही ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोम्बिक सल्फर और वेपर सल्फर ये दोनों ही आपस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हैं। तो अगर हम इस कर्व की बात करें तो इस कर्व पे भी वी विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हाट 1 एज, क्योंकि 1 क्यों आएगा, क्योंकि जब हम देखेंगे यहाँ पे 2 फेजेस इक्विलिब्रियम में है तो नंबर ऑफ फेजेस तो 2 ही हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कंपोनेंट 1, और जब फेज रूल पे हम इस वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, एंड दैट इज़ वाई द सिस्टम इज
यूनिवेरिएंट और मोनोवेरिएंट वी कैन से। अब हम बात करेंगे कर्व CF की, ठीक है। जो कर्व CF है, यहाँ देखते हैं, ये है कर्व CF, ओके, CF कर्व है ये है CF। ये रिप्रेजेंट करता है लिक्विड सल्फर को। हमने पहले ही कंसीडर किया है कि सॉलिड सल्फर से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होने में ना इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो वी आर कंसीडरिंग ओनली सॉलिड रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर एंड वेपर सल्फर। तो क्या है कि वी आर डिस्कसिंग कर्व CF। तो कर्व CF रिप्रेजेंट करता है लिक्विड सल्फर को, ओके, और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि वेपर सल्फर और लिक्विड सल्फर के बीच में यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है। तो एट दिस पर्टिकुलर curve CF, we will get the degree of freedom 1. Why? Because two phases are there and one component. By putting this value on the phase rule, we will get degree of freedom 1. Now, so just read about the curve CF. This is the vapor pressure curve of supercooled liquid sulfur. Yes, this dotted curve CF is obtained on supercooling liquid sulfur. जब liquid sulfur को super cool करते हैं तो हमें ये curve मिलता है और ये show करता है metastable equilibria between cooled liquid and vapor sulfur. ये तो हम देख ही चुके हैं, liquid और vapor sulfur के बीच में metastable equilibria show करता है। आगे हम पढ़ेंगे डॉटेड कर्व EF के बारे में। तो it is a fusion curve of metastable rhombic sulfur. Along this curve, the two-phase rhombic and liquid sulfur are in equilibrium and the system is monovariant. ये कर्व्स पे सिस्टम तो मोनोवेरिएंट ही होने वाला है, we all know, क्योंकि हमने बहुत बार फाइंड आउट किया है एंड वी हैव गॉट दिस। तो हम बात कर रहे थे कर्व EF की, तो कर्व EF देख लेते हैं। ये है कर्व EF, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर के बीच में इक्विलिब्रिया, और यहाँ पर भी सेम चीज़ ही है, दो फेज है, वन कंपोनेंट है, द सिस्टम इज मोनोवेरिएंट और यूनिवेरिएंट। नाउ द मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट F। ट्रिपल पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तीन फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम हैं, इसीलिए ट्रिपल पॉइंट है। हम इसको डायग्राम में ही देख लेते हैं। तो ये है हमारा ट्रिपल पॉइंट F, जो कि मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट F कह सकते हैं, क्योंकि तीन मेटास्टेबल कर्व्स के बीच में आया है, तीन मेटास्टेबल इक्विलिब्रियास को यहाँ पे शो कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट पे रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर तीनों ही इक्विलिब्रियम में होते हैं, और अगर इक्विलिब्रियम में तीनों हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ फेज वी विल हैव 3, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1, एंड आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज ऑन द फेज रूल वी विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ दैट्स ऑल। आई थिंक इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।